Now I'll give you one example. Here the table is shown where sales in $1 million of the mango fruit company and the apple fruit company over 4 years is given. Now you carefully observe mango fruit company, apple fruit company, 1999, 2000, 2001, 2000. Unit is mentioned here. What is that in $1 million? Correct. Now you carefully observe here the data. When they are saying the sales, can anybody tell me sales is measured in which units in real life? Anybody can share me? Yeah, I'm asking sales, correct? So what is the unit of sales in real life? We generally measure it in millions. Measured in what? Millions. Million. No, partially true. What I'm asking exactly, sales we can measure in two different units. One is the sales quantity, like I have sold 10 pen, suppose. So I'll say that my sales is for today is 10. If I want to say in terms of quantity. But if I want to say in terms of value, then what I can do, I can multiply each pen ka cost or maybe sales price here, correct? So suppose one pen costs 5 rupees. So 10 pen cost 50 rupees. So I have done sales of 50 rupees. I can measure the sales in both the units, quantity as well as value. Remember this thing, correct? So whenever you will get this kind of table, you need to analyze those things, like in which unit data is given. Lot of time it may happen that data is given in $1 million, here it is mentioned, but in question they will ask answer in $1 billion, correct? It may possible. So you need to be very careful while analyzing the data. Second thing is one more term which is equivalent to sales, which is what I mean, in real life, we use it maybe interchangeably. Anybody can tell me which is that word? Currency. Not currency. Not currency. Revenue, have you heard of? Yes, sir. Revenue. Yes, sir. Yes, sir. Revenue. So revenue and sales, generally people use it interchangeably. Now the people who are from maybe CA background or something, commerce background, they know basically like what is the exact difference, correct? But for our CAT purpose, it is okay if you use it interchangeably. But you need to be clear, like, okay, so both words are mentioned that you need to, I mean, you should be able to understand. Second thing is, if I talk about cost, so cost side also two words are there. Which words? One is a simple word which is cost. Second is a expense or expenditure, correct? So both these words are little bit correlated. I'll say not exactly same because two words are different. That means those two words should have different meaning. तभी वो different हो सकते हैं, correct? If you learn something about in vocab में synonyms होते हैं, correct? तो synonym है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि both words सारे context में use कर सकते हैं, no. Correct? So if two words are different, definitely they have different context or different usage. Now, in this data, the question asked is out of the total sales in 2000, what percentage of sales belong to mango fruit company? So quickly मुझे calculate करके बताओ कितना आएगा आंसर? Everybody has pen and paper, I think, correct? I mentioned that लेके बैठने का क्लास में है तो easily हो जाता है. Can anybody tell me quickly percentage of sales belongs to mango fruit company in 2000? Sir, I have a question. Yeah. 40%. 40%. 40%. 40%. Yeah, so how are you calculating? 30 divided by 30 plus 45, that is what? 75. 30 divided by 75. Okay. Now you carefully observe 30 divided by 75 calculate करना है. How will you do it very easily? ये जो 30 है ना and 75 है, सब में 5 कॉमन है, उड़ा दोगे, ऊपर रहेगा 6, नीचे रहेगा कितना 15. अगेन प्रॉब्लम होगा, करेक्ट?
एनी अदर थिंग 15 से कर सकते हो डिवाइड, इजीली हो जाएगा. 15 2 जा 30 and 15 5 जा, correct? So 2 by 5 which is same as 4 by 10, so which is same as 40%. It's up to you how you calculate, correct? Easy है. So everybody is following me? किसी को डाउट है तो Yes. पूछ लेना, ठीक है? वेरी बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, बट DI एट अ टाइम्स बहुत डिफिकल्ट लेवल पे चला जाता है इफ योर बेसिक कंसेप्ट्स आर नॉट गुड. ठीक है? सो सिंपल sir, था ये क्वेश्चन. Yeah. Sorry to interrupt. I have a small question. So you said we'll use normally interchangeably between revenue and sales word, right? So even in revenue we should be, I mean, we can use the quantity like what we have used नो, for sales. जनरली रेवेन्यू के साथ क्वांटिटी नहीं यूज करते हैं जनरली, Okay. करेक्ट? Yeah, इसलिए in मैं current बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि समवेयर रेवेन्यू इज मेंशन, दैट मींस यू आर सेलिंग समथिंग, यू आर गेटिंग सम मनी, दैट इज Yeah. रिलेटेड टू रेवेन्यू, करेक्ट? Okay. Okay, sir. Thank you. Second, now the second thing is percentage increase or decrease. See, whenever we are saying that increase or decrease in percentage, the formula is absolute में increase or decrease कितना हुआ है divide by base value, correct? Now what is this base value? Base value क्या लेंगे? तो ये वाला example देखो, Mango Fruit Company 1999 to 2002. Now depends on the question, हम लोग base लेंगे, correct? ऐसा नहीं कि कोई भी आंख बंद करके 1999 बेस ले लिया या 2002 बेस ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता. सो हियर एवरीबडी इज एबल टू सी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ इन द सेल्स ऑफ एप्पल फ्रूट कंपनी बिटवीन द इयर्स 1999 एंड 2001, करेक्ट? सो कैन जल्दी से क्विकली कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा आंसर. एप्पल फ्रूट 20%. कंपनी का परसेंटेज ग्रोथ कितना हुआ है 1999 टू 2001? 20%. 5%? 20%. 20%. 20%. ओके, सो 5% कौन बोला? आंसर कैसे आया बताओ? Who said 5%? मिस्टेक समझ में आया? कहां पे हुआ होगा? सी अभी मैं इसको सॉल्यूशन दिखा लेता हूं. देखो, सबसे पहले क्या किया इसका, 2001 में कितना है? 60 है, 1999 में 50 है. नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ इन सेल्स ऑफ एप्पल फ्रूट कंपनी बिटवीन द इयर्स 1999 एंड 2001, करेक्ट? ग्रोथ पूछा है. ग्रोथ का मतलब क्या होता है? दे आर आस्किंग फॉर सम काइंड ऑफ इंक्रीज, करेक्ट? ग्रो होना दैट मींस इंक्रीजिंग. That's why हमको समझ में आ रहा है हमें बेस क्या लेना चाहिए, which is on a lower side, which is what 1999 को बेस लेना चाहिए, करेक्ट? सबको समझ में आया? सो 1999 का वैल्यू कितना है? 50 है, एंड 2001 का वैल्यू है 60 है, करेक्ट? सो 60 एंड 50 के बीच का डिफरेंस है 10. सो 10 एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ है. सो 10 डिवाइड बाय बेस वैल्यू विल टेक 50. नाउ I'll give you, इसको है ना ऐसे भी कर सकते हो या इन अदर वर्ड्स कैसे बोल सकते हो, देखो 10 बड़ा है 50 के बेस पे, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 100. सो 100 में कितना बड़ा है? 20. दैट्स व्हाई 10 to is the answer. समझ में आया कैसे इजीली कर सकते हैं? इफ यू नो द मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत इजीली हो जाएगा. सपोज अगर आपको ऐसा पूछा रहता है कि बेस इज 150, 150 में 15 बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है आउट ऑफ 100? ऑब्वियसली 150 में से 15 कैसे डिराइव कर सकते हैं? 10% लेके, करेक्ट? बिकॉज 150 डिवाइड बाई 10 करोगे तो डायरेक्टली 15 मिल जाता है. दैट्स व्हाई 10% इज द आंसर. तो ऐसे मतलब थोड़ा ट्रिक यूज करते जाने का, करेक्ट? देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स. ऐसा एक प्रॉपर आंसर नहीं होता है, मतलब मेथड नहीं होता है DI में, आपको जैसा ठीक लगे, बट यू एक्सप्लोर डिफरेंट मेथड्स ताकि आप लोग का माइंड को थोड़ा एक्सरसाइज होगा, आपको समझ में आएगा विच टाइम कौन सा मेथड यूज करना है. नेक्स्ट इज अ परसेंटेज चेंज. नाउ परसेंटेज डिफरेंस इन परसेंटेज चेंज इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन टू परसेंटेज चेंजेस कैलकुलेटेड इन द यूजुअल वे. Now percentage change is not a percentage but an absolute number, since a percentage calculation always have a base value. ये sentence पढ़ के सबको मतलब क्या लग रहा होगा? बहुत difficult concept है, correct? बहुत difficult लग रहा होगा. So question है इधर, what is the difference between the percentage changes in the sales of Mango Fruit Company and Apple Fruit Company in the year 2001? Now ये वाला calculate करके मुझे बताओ. Just use your मतलब gut feeling कि इसका आंसर क्या होगा. आपके पास डेटा है, डेटा नोट किया है? I'll go back.
क्वेश्चन क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज चेंजेस इन द सेल्स ऑफ मैंगो फ्रूट कंपनी एंड एप्पल फ्रूट कंपनी इन द ईयर 2001. ये था डेटा, करेक्ट? मैंगो फ्रूट एंड एप्पल फ्रूट कंपनी का 2001 में डेटा, और फिर उसमें क्या पूछा है? परसेंटेज. नोट किया सब लोग ने? ये बेसिक टेबल एटलीस्ट नोट कर लो एक नोट पेन एंड पेपर पे, तो इजीली हो जाएगा. किसी का आया आंसर? क्या हो सकता है? एनीबडी? Sir, is it 20%? 20%. और Yes, कोई sir, आंसर? 20%. 20%. 20% कैसे कैलकुलेट किया? 20% कैसे कैलकुलेट किया? सर वो दोनों का पहले परसेंट में कन्वर्ट किया जिसका आया इंडिविजुअल था और फिर बताओ. उनका डिफरेंस किया. इंडिविजुअल Hello? किया और डिफरेंस किया. ओके, बट हाँ. दैट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस हुआ ना. फिर परसेंटेज का मतलब कैसे रहेगा? तो लेट्स सी कैसे कर सकते हैं. सॉल्यूशन दिखाता हूं. यहाँ पे आप लोग का मिस्टेक हुआ होगा, करेक्ट? देखो, परसेंटेज चेंज इन सेल्स फॉर द मैंगो फ्रूट कंपनी इन 2001 कितना हुआ है? 30 से 40. लेट्स चेक द डेटा. ये देखो, ध्यान से देखो. नाउ ईयर ऑन ईयर यहाँ पे चेंज हो रहा था, तो डेफिनेटली एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया था क्वेश्चन में कि बेस क्या लेना है, करेक्ट? बेस नहीं बताया था, बट क्या बोल रहा था? अभी डेटा को थोड़ा ब्रेक कर करके पढ़ते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज चेंजेस इन द सेल्स? अभी परसेंटेज चेंजेस को साइड पे रख देते हैं. इन द सेल्स ऑफ मैंगो फ्रूट कंपनी एंड एप्पल फ्रूट कंपनी इन द ईयर 2001. नाउ ऑब्वियसली मैंगो फ्रूट कंपनी से सेल एप्पल फ्रूट कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, करेक्ट? कंपेयर करना होगा sales of मैंगो फ्रूट कंपनी एंड एप्पल फ्रूट कंपनी इन 2001 में चेंज कितना हुआ है. तो मैंगो फ्रूट कंपनी का लेते हैं एग्जांपल. कहां से कहां चेंज हुआ है? 2000 ईयर में था 30, 2001 में 40 हुआ. तो कितना बढ़ा है? 10 आउट ऑफ 30, विच इज व्हाट 1/3, विच इज 33.33%. ये वाला सबको पता है ना? 1/3 इज 33.33%. एनीबडी हैज एनी डाउट? इजी कैलकुलेशन है, करेक्ट? रुका के मुझे पूछ लेना, बिकॉज ये बेसिक से चल रहा है, अभी बाद में डिफिकल्ट होते जाएगा. सिमिलरली इफ यू वांट टू कैलकुलेट फॉर एप्पल फ्रूट कंपनी 2001 में क्या होगा? 45 से 60. लेट्स चेक कैसे हुआ 45 से 60. ये देखो यहाँ पे 2000 में 45 था एप्पल का, 60 हो गया 2001 में. सो 45 से 60 कितना चेंज हुआ? 60 माइनस 45 दैट इज 15 आउट ऑफ 45. तो 15 3 45 होता है, मतलब 1/3 पार्ट है, मतलब 33.33%. अभी इन दोनों का हम लोग डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा. सो आंसर इज 0. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था. एवरीबडी क्लियर ऑन दिस क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट Yes, है? ठीक है. ये ऐसा क्वेश्चन कैट में आ सकता है, मतलब ये मैं बोल सकता हूँ थोड़ा मीडियम या इजी लेवल बोल सकते हैं कैट का. डिफिकल्ट लेवल नहीं है, मतलब अगर आप थोड़ा लैंग्वेज को अच्छे से समझेंगे तो आपको आ जाएगा क्वेश्चन. चले मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग. किसी को डाउट है तो रुका के पूछ लेना, ठीक है? या सो फ्यू टिप्स. सो कैसे ये टिप्स? whenever percentage sign is used it means that a value before the percentage sign has been compared with a base value. If in the above answer we say that difference in percentage change is 0%, it means that we have compared 0 with a base value. समझ में आया सबको? Yes, sir. बेसिकली बेस वैल्यू एंड नया वैल्यू सेम होगा तो परसेंटेज चेंज कितना होता है? 0. कुछ चेंज ही नहीं हुआ बेसिकली, करेक्ट? इन अदर वर्ड्स, ठीक है? नीचे है however as it is evident from the solution we have not compared the difference in percentage change with any base value, therefore it would be logical for the answer to be accompanied by a percentage sign. तो बोल रहे हैं कि ये जो आंसर बोला ना हमने 0 डिफरेंस इन परसेंटेज, डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज चेंजेस, तो उसका आंसर हम लोग परसेंट में नहीं लिखना चाहिए, करेक्ट?
डिफरेंस बोला है तो क्या होगा 0। जब भी कुछ बोला नहीं है तो डिफरेंस को एब्सोल्यूट डिफरेंस माना जाता है। एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज, सबको समझ में आया? करेक्ट, ये कहने की बात चल रही है। अगर मैं बोलता हूं कि एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे दो लोग है सपोज, अदिति एंड आयुष। अदिति एंड आयुष के मार्क्स में सपोज 10 का डिफरेंस है, करेक्ट? इफ आई से दैट, तो 10 इज एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर मैं कुछ मेंशन नहीं करता हूं तो, करेक्ट? इट इज नॉट परसेंटेज। परसेंटेज के लिए मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि परसेंटेज है डिफरेंस। सेकंड थिंग क्या है? द डिफरेंस इन परसेंटेज चेंज इज ऑफन कॉल्ड ए डिफरेंस बिटवीन टू परसेंटेज चेंजेस मेजर्ड इन परसेंटेज पॉइंट्स। नाउ ये वाला जो कंसेप्ट है ना परसेंटेज पॉइंट्स, ये वाला मैं आप लोग को बाद में जब एक एग्जांपल आएगा तब बताऊंगा। अभी के लिए मैं इतना बोल देता हूं, सपोज आयुष ने 50% मार्क्स मिला है आयुष को, ठीक है, एग्जाम में। अदिति को मिला है 60% मार्क्स। सो व्हाट इज द परसेंटेज पॉइंट चेंज? कितना है डिफरेंस दोनों के मार्क्स में, ये बताओ। कैन एनीबॉडी टेल मी? 0.1 0.1 sir. Why 0.1? 10%. Sir, percentage change is 10%, sir. Then in point we get 0.1. Okay, no. So your understanding is incorrect. Percentage point का मतलब इतना ही होता है, क्या करने का? दोनों परसेंटेज लेने का और दोनों को माइनस करने का। That is my answer. 50% 60% के बीच का डिफरेंस क्या है? 10%. So 10 is my answer. That is called as percentage points. Now इसमें और एक चीज है, किसी को डाउट आ सकता है कि अदिति ने जब पेपर लिखा तो उसका जो पेपर था उसके मैक्सिमम मार्क्स डिफरेंट रह सकते हैं। उसने 200 मार्क्स के पेपर में 50% मार्क्स लाए, करेक्ट? ऐसा हो सकता है आयुष ने 500 मार्क्स के पेपर में 60% मार्क्स लाए। नाउ किसी को डाउट हो सकता है कि सर दोनों के तो बेस डिफरेंट है, तो हम लोग ने डायरेक्टली परसेंटेज का डिफरेंस क्यों ले लिया? समझ में आया व्हाट आई एम सेइंग? एवरीबॉडी इज फॉलोइंग मी? करेक्ट? Yes, sir. बट स्टिल मैं आंसर क्या बोलूंगा? 60 माइनस 50 10। मतलब परसेंटेज पॉइंट जब कैलकुलेट करना है तो दो परसेंटेज को लेके आंख बंद करके उनका डिफरेंस ले लेने का, चेक नहीं करने का कि उनका बेस क्या था। करेक्ट? बेस कैन बी डिफरेंट। Okay, sir. ये वाला पॉइंट हम लोग जब कोई एक एग्जांपल आएगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं इस पे परसेंटेज पॉइंट पे।